ओके, इसमें वॉइस क्लियर प्रॉपर, मेरे बात सब अच्छे से आ रही है आप सबको? यस, गुड. So today I'm beginning with first topic of your physics, dimension analysis. So see, the dimension analysis is first chapter of your physics, and it is very basic chapter. Mostly you will able to understand. See, this chapter might not be having much weightage in your quantitative exams, but this is a basic chapter. इसका हर जगह use रहता ही है. So today we are planning some few points that I will discuss. What are physical quantities? What are system of units? What is dimension? What is dimensional equation? Then in next class, I'll try to discuss types of errors. I'll also discuss precision. Then I will also discuss some more numericals on all the concepts which I'll discuss today. Today I'll discuss very basic things. Then I'll go ahead in tomorrow. Okay, now let's begin. What are physical quantities? See, physical quantities are those quantities which can be measured. क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. आई गिव यू एग्जांपल. लेंथ. अब लेंथ मेजर करते हो. ओके, 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 4 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है. ये लेंथ हो गया. यू कैन मेजर टाइम. अभी क्लास 2 घंटे है, अभी क्लास 15 मिनट हो गए. दैट ऑल थिंग विल डिस्कस. ओके. एंड देन व्हाट आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज? स्पीड. मेरी गाड़ी 80 की स्पीड में चलती है. प्लेन किस स्पीड से चलता है? बुलेट ट्रेन 500 की स्पीड से चलती है. दैट ऑल is example of speed. That is also physical quantity. There are other physical quantities also. Acceleration. That is also physical quantity. When I talk about these physical quantities are of two types. One type of physical quantity is known as fundamental physical quantity. Other is known as derived physical quantities. Fundamental physical quantities are known as basic or independent. Why they are called as independent? Because they are not dependent on any other quantity. I give you example. Mass. Mass is independent. Mass is not dependent on any other quantity out of this. Similarly, length. Length is independent. Similarly, time. Time is independent. So these are some fundamental physical quantities which are basic physical quantities and are known as independent. Now derived physical quantities are known as dependent. They are dependent. Why they are called dependent? Because they are made from fundamental quantities. Example, speed. What is speed? Distance upon time. मतलब what? Length upon time. So speed is made from length and time. That's why speed is known as derived physical quantity. Basic acceleration. Now what is acceleration? Acceleration is called as speed upon time, right? Speed upon time means what? Length upon time square. Means my even acceleration is made from these two quantities. Similarly, force. Force is what? Mass into acceleration. So it is made of mass, length and time square. So even acceleration force is also derived quantity because it is made of these fundamental quantities. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? You are able to understand till here? If you are able to understand, please type 1. Any doubt you can ask. Very good.
Now when we say what are units, now what are units? See, units are used in physical quantities. When I say length, I say what? 5 meters. Meter is what? Meter is unit. I say height is 6 feet. Feet is what? Unit. When I say time is 10 minutes, 20 seconds, what are these minutes and seconds? Minutes and seconds are also unit. When I say weight is 60 kg, mass is 60 kg, what is this kg? Kg is also units. So my physical quantities are measured with the help of units. सो मेरी ये यूनिट्स क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है. अब देखो जो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये 4 टाइप के होते हैं. दीज फर्स्ट 3 आर वेरी ओल्ड एंड दिस इज न्यू वन जो हम यूज करते हैं अभी. आप जो अभी यूज करोगे और यही आप पूरे 2 साल पढ़ोगे. जो ये ओल्ड सिस्टम्स है, ये बिफोर दिस एसआई सिस्टम वर यूज्ड. अब देखो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, इन सब का मीनिंग होता है. सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड्स. एफपीएस, एफ स्टैंड फॉर फुट, P stands for pound, S stands for second. MKS, M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for seconds. तो देखो ये आपका जो पहला पोर्शन है, ये लेंथ है, जो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी. ग्राम क्या है? आपका मास है. ये 3 क्या कर रहे हैं? मास मेजर करते हैं. ग्राम, पाउंड, केजी, दे आर ऑल मास. ओके. टाइम है सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड्स. so these 3 are time. so these are my 3 systems of units which were used previously in their old system. अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है इन तीनों सिस्टम में. देखो सीजीएस, एफपीएस, एनएफआईटी, एमकेएस. व्हाट इज प्रॉब्लम इन ऑल दीज 3? सब अपने अपने अलग अलग है. देखो कहीं जगह मेजर लेंथ का सेंटीमीटर में, कहीं जगह फुट में, कहीं जगह मीटर में. अब प्रॉब्लम क्या होती है? आई ऑलरेडी डिस्कस विद सम स्टूडेंट्स. एक बार नासा ने एक स्पेस शटल बनाया फॉर गोइंग टू मार्स लॉन्ग बैक. When they made space shuttle, there were different scientists. Some scientists were from USA, some scientists were from Russia, some scientists they were from UK or England. See now UK they were following this system, Russian they were following this system, और USA they were following this system. तो क्या हुआ जब तीनों ने मिलके इंडिविजुअल पार्ट्स बनाए स्पेस शटल के, तो उन सब ने डायमेंशंस क्या लिए? अपने अपने हिसाब से ले लिए. किसी ने डायमेंशन सीजीएस में ले लिया, किसी ने एमकेएस में, किसी ने एफपीएस में. फाइनली जब स्पेस शटल बना तो क्या हुआ? जब जो पैरामीटर प्लान किया था मार्स तक पहुंचने का, वो पैरामीटर्स अचीव हो नहीं पाए. क्यों? क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग डायमेंशन लगे थे. फाइनली व्हाट हैपेंड? दैट स्पेस शटल कुड नॉट गो टू मार्स. इट वेंट समवेयर एल्स एंड इट वेंट इनटू आउट ऑफ रेंज, मिसडायरेक्ट हो गया. So when then scientists they thought that there should be a standard so that if I say mass, so it should be measured in that particular standard. If I say length, it should be measured in that particular standard of unit. Similarly, if I say there is seconds or time, it should be measured in particular standard of unit. So they made a SI. S stands for standard. So see, now what is that SI unit? It also helps to measure length, mass, time. But length they made a standard. Length मतलब हमेशा मीटर में ही रखेंगे. मास हमेशा हमेशा हम किस में रखेंगे? केजी में रखेंगे. टाइम हम हमेशा किस में रखेंगे? टाइम विल ऑलवेज कीप इन
सेकेंड्स। इससे क्या होगा, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। इंडिया में, यूएसए में, चाइना में, ब्राजील में, कहीं पे भी रहे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा मास, लेंथ और टाइम को लेकर। सो दैट्स व्हाई दिस एसआई इज नोन एज मॉडर्न यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, अब देखो, एसआई यूनिट कैन मेजर टोटल 7 quantities, 7 physical quantities. There are total 7 fundamental physical quantities. I put fundamental also. There are total 7 fundamental physical quantities, and there are infinite derived quantities. देखो, FPS, CGS और MKS, they only had 3 fundamental quantities. They had only 3 fundamental quantities: length, mass, time. But SI made 7. Length, mass, time तो था ही. They made 4 more quantities that we'll study now in our just ahead. अब देखो, dimension and dimension equation, that also I'll explain you in as we go ahead. So now I'm going ahead to main part. Are you able to understand? Are you able to understand till now what I discussed? It's very easy, right? Okay. आज की बेसिक क्लास है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. May be little boring, can be. You might not be knowing all these things. Okay, now let's come to basic physical quantities. 7. Okay, see, first fundamental quantity is my mass. In CGS, mass is measured in gram, FPS pounds, MKS kg, SI kg. See, now this is dimensional formula. See, dimensional formula हर physical quantity का, हर fundamental quantity का फिक्स रहता है. क्या रहता है? फिक्स रहता है. तो देखो, when I say mass, if I write like this, what does it mean? I'm asking dimensional formula of mass. What is dimensional formula of mass? Capital M. So dimensional formula of mass is denoted by capital M. Now when I say time, see, time सबसे easy है. CGS, FPS, MKS और SI, तीनों में सेकेंड. अब ये क्या है सिंबल? टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला. देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम क्या रहता है? टी से डिनोट होता है. इट इज डिनोटेड बाय टी. सिमिलरली लेंथ इज डिनोटेड बाय सेंटीमीटर, फुट, मीटर, SI ऑल्सो मीटर. अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का क्या होता है? एल होता है. तो पहले नंबर से याद रखो, मास, टाइम, लेंथ. अब ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट. अब एक्स्ट्रा 4 क्या है मेरी क्वांटिटीज? करंट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वांटिटी. अब देखो, CGS, FPS, MKS में इसका कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है. SI में क्या है इसका? एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. ये SI यूनिट है. अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का 2 है. या तो I लिख सकते हो, जो यूनिट है इसकी I आप लिखते होगे एग्जाम में, 10th में पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाई टी. तो या तो अभी I लिख सकते हो, या फिर आप एम्पियर का A लिख सकते हो. दोनों चलेगा. C मत लिख देना, C गलत है. डोंट राइट C. ये मेरी 4th क्वांटिटी. ठीक है. 5th क्वांटिटी मेरी क्या है? टेम्परेचर. टेम्परेचर किस में मेजर होती है? टेम्परेचर SI केल्विन. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज केल्विन? कितने पढ़ा है केल्विन? पढ़ा है? यस, केल्विन पढ़ा होगा आपने, राइट. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. ठीक है. सो टेम्परेचर का जब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूं, क्या रहता है वो? थीटा, टेन थीटा वाला थीटा. देखो, आप टी नहीं ले सकते हो. क्यों? क्योंकि टी ऑलरेडी यूज हो चुका है टाइम में. याद रखो, यू हैव टू टेक थीटा. नेक्स्ट क्वांटिटी इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. Okay, any one of you know what is the unit, SI unit of luminous intensity? Any one of you know?
कैंडेला। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला CD से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? CD। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी वन ऑफ यू नो हाउ वी मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? मोल। वेरी गुड। सो SI यूनिट है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डिनोट करते हैं MOL से। अब देखो ये मेरी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी हमने यूनिट्स पढ़ी, उनकी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूले से। देखो अब डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकलते हैं? इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। देखो वेलोसिटी है, अगर मुझे वेलोसिटी का निकालना है डायमेंशनल, तो मुझे देखना पड़ेगा वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्टेंस का L, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज L, टाइम इज T, L by T becomes LT minus 1. So this is my dimensional formula of velocity. If I want to know the dimensional formula of force, or if I want to know dimensional formula of acceleration, suppose acceleration का चाहिए मुझे, how I will calculate dimensional formula of acceleration? It will be what? Velocity upon time. So dimensional formula of velocity क्या है मेरा? LT minus 1, और टाइम क्या हो जाएगा? T। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? LT minus T, LT minus 2. Similarly, if I want to know for force, force का क्या हो जाएगा? Force will become mass into acceleration. मास क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? LT minus 2, MLT minus 2. So derived quantities, if you see this one, acceleration LT minus 2, force MLT minus 2, they are all derived from what? They are made from fundamental quantities. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो ये क्लियर होगा जब भी आगे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग अहेड। क्लियर है? ठीक है भाई, डायमेंशन फॉर्मूला से आपके मेंस और नीट में काफी क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला अभी निकालेंगे एटलीस्ट बेसिक क्वांटिटीज का। नियरली वी विल ट्राई। ओके, आई विल कम बैक टू दिस SI प्रीफिक्स। फर्स्ट आई वांट टू गो टू डायमेंशनल फॉर्मूला। आई गिव यू एग्जांपल। वेलोसिटी हमने डिस्कस किया LT minus 1, एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया LT minus 2, फोर्स हमने डिस्कस किया MLT minus 2. This I already we have done. Now वेलोसिटी की अब इनकी SI यूनिट भी पढ़ते हैं। ओके, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या है? यू हैव टू टेल मी, जिसको आता है। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। देखो L क्या हो जाएगा? मीटर बन जाएगा। पर सेकेंड क्या बन जाएगा? T बन जाएगा, राइट? ओके, एक्सेलरेशन की क्या होती है SI यूनिट? L मीटर बन जाएगा और ये सेकेंड स्क्वायर। MLT माइनस फोर्स क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज न्यूटन। अभी न्यूटन से क्यों रिप्लेस कर दिया? देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आप हर बार बोलोगे, सपोज मैंने 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, तो सुनने में काफी बड़ा लगता है, बहुत तकलीफ होती है बोलने में, इसको रिप्लेस कर दिया 6 न्यूटन से। लेकिन न्यूटन का मतलब क्या है? न्यूटन के अंदर क्या छुपा है? न्यूटन के अंदर ये छुपा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वर्क। ओके, अब वर्क कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क? वर्क क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, you have to find dimensional formula of work. Quickly try to find dimensional formula of work for each
आई विल गिव यू 1 मिनट टू ट्राई योरसेल्फ. अगर आप ये अभी 10-15 क्वेश्चंस कर लोगे आपको बन जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस. ML T-2 दो बच्चे बोले. फोर्स मुझे ऑलरेडी पता है. ML2 सॉरी ML T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया. क्या हो जाएगा? ML2T-2. फोर्स क्या आपका? ML T-2, राइट. तो मेरा ये वर्क हो गया. ओके, वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल्स. आप ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखते हैं? जूल्स, डिनोटेड बाय J. फोर्स इज डिनोटेड बाय N. मैं आपको ऐसा यूनिट से पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम में डायरेक्ट आती है. दिस यूनिट्स डायरेक्टली कम्स इन एग्जाम्स. ठीक है. नेक्स्ट, पावर क्या होता है? पावर, व्हाट इज पावर? वर्क अपॉन टाइम. ओके, निकालो इसका क्या निकलेगा. ट्राई टू फाइंड dimensional formula of power. All of you do. I want all of you to do. All 20 students. ML2T-3. इसको बस टाइम से डिवाइड कर दो. वर्क का क्या होता है? ML2T-2 अपॉन T कर दो. ML2T-3. करेक्ट. ओके, पावर की यूनिट क्या होती है? वाह, वेरी गुड. देखो आप ऐसे लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. वॉट भी लिख सकते हो और W भी लगा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम की क्या रहता है डायमेंशनल फॉर्मूला? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? यस, देखो आप लिखते हो वॉल्यूम मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब, राइट. 100 मीटर क्यूब, 500 मीटर क्यूब, राइट. मीटर क्यूब के टर्म से लिखते हैं वॉल्यूम. लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ा होगा आपने क्यूबॉइड का, तो L क्यूब हो जाएगा. वेरी क्यूब. ओके, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम मेजर कैसे होता है? लीटर्स, M क्यूब. आप लीटर्स लिख सकते हो. L 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, राइट. ओके, नेक्स्ट, मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज फोर्स इंटू सॉरी मास इंटू वेलोसिटी. ओके, निकालो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. ML T-1. ML T-1 सबका ये आ रहा है. ओके, गुड. मास क्या हो जाएगा? M हो जाएगा. और वॉल्यूम वेलोसिटी क्या हो जाएगा? LT-1, ML T-1. वेरी गुड. ओके, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की कोई यूनिट है? मोमेंटम की कोई यूनिट नहीं है. मोमेंटम आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हो kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम की कोई यूनिट नहीं. ओके, नेक्स्ट, डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. वेरी गुड. ओके, मास बाय वॉल्यूम कैसे क्या होगा इसका? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इफ आई राइट लाइक दिस? यस, ML-3. वेरी गुड. ओके, डेंसिटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है. डेंसिटी आप ऐसे लिखते हो. हाउ यू राइट डेंसिटी? kg पर मीटर क्यूब. वेरी गुड. ठीक है, अभी तक कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट टिल हियर? कुछ बच्चों का रिवीजन हो जा रहा होगा, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे. वेरी गुड. नाइस. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी सेम एज वर्क. वेरी गुड. एनर्जी और वर्क सेम ही होता है, यूनिट सेम है. अब देखो वर्क क्या था मेरा? ये था
ml/t-2 एनर्जी भी यही हो जाएगा। तो एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, पूरा यही वर्क का आ जाएगा, क्या, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल्स। ओके नेक्स्ट, हीट। हीट क्या होता है, हीट, we say heat is a, what is the unit of heat, same, heat is also joule। ओके, हीट एनर्जी, सी बहुत सारी एनर्जीज आपने पढ़ी होंगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट, ये सब एनर्जी सब जूल है, सारे जूल्स। ये भी ml/t-2 दैट इज आल्सो जूल। ओके नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। सो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम है तो टी इनवर्स, मतलब क्या, सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, कितनों को पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट, हर्ट्स, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी यूनिट इज हर्ट्स, एच जेड। ये सारी एसआई यूनिट्स पढ़ रहे हैं, एसआई यूनिट्स। देखो पर सेकंड बोलना अच्छा नहीं लगता, मेरी फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकंड है, 10 पर सेकंड है, क्या बोलते हैं हम, 5 हर्ट्स है, 10 हर्ट्स है, सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया हर्ट्स से। वेरी गुड। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, नाउ आई विल गिव यू सम मोर। ओके, ट्राई दिस वन, चार्ज। व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। चार्ज का क्या होगा, IT AT। सी नाउ स्टूडेंट्स, देखो, आई टोल्ड यू बिफोर, आई जस्ट गो बैक, सी हियर, current is a current is a fundamental quantity, current is a fundamental quantity, sorry this one, current is a fundamental quantity, charge is a derived quantity। how we will find, see I equal to q by t, so q equal to क्या हो जाएगा, I into t, तो q equal to क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा मेरा, डायमेंशनल फॉर्मूला I का क्या हो जाएगा, या तो A लिख लो या I लिख लो, तो देखो AT IT both are correct, AT is also correct, IT is also correct। कितनों को समझ में आई है, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आया सबको समझ में, चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, चलो ठीक है। सो नाउ वी गॉट फॉर चार्ज, व्हाट इज चार्ज, IT एंड कुछ भी चलेगा, मैंने IT लिखा है, इवन इफ यू राइट AT बोथ आर फाइन, बोथ आर फाइन। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर सेकेंड्स। एम्पियर सेकेंड्स कभी सुना है क्या, नहीं, क्या सुना है मैंने, कूलम्स और सी से डिनोट करते हैं 5C 10C। नेक्स्ट, पोटेंशियल, सी व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, आई गेव यू द फॉर्मूला, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी द डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज का यहां से ले लो, IT या AT को एक ले लो, वर्क, वर्क ये आ गया, अब इसका मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लेता हूं, तो क्या आ जाएगा वर्क का, ml/t-2 अपॉन व्हाट इज चार्ज,
चार्ज इज आई टी, एम एल टू आई इनवर्स टी माइनस थ्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम एल टू ए इनवर्स टी माइनस थ्री। ए बाद में आए पहले आए चलेगा, कहीं का ऐसा होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, कितने बच्चों को ये बना? हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर? इफ यू गॉट प्लीज टाइप वन। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर? आया? ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड, रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ओम्स लॉ पता है कि नहीं? ओम्स लॉ, resistance V by I. Yes, very good. So R equal to V by I. R equal to V upon I. तो फिर बताओ क्या होगा? V आपको पता है, ये आ गया V, ये हो गया I। पोटेंशियल V होता है, सर ये I है, I आपको ये मिलेगा एम्पियर से। V by I क्या होगा फाइनली फॉर्मूला? Students, is my voice clear? Is my voice clear to you all? Okay. In between, it was showing network unstable. That's it. Okay. See, resistance is V by I, right? What is V? We know. M L 2 T minus 3 I minus 1 upon I. M L 2 T minus 3 I minus 2. Very good. Your answer will be this. Okay, force due to gravity. What will be force due to gravity? Force due to gravity क्या होगा? आपने पढ़ा होगा force due to gravity. Force is same. This force, this same. तो क्या आ जाएगा आपका? M L T minus 2. Force of gravity and this force both are same. Okay, now let's see. What is unit of potential? Potential की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, VOLT। वी से नोट कर देखो, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने से कितना फायदा होता है। अब देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, इसको आप लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर इनवर्स। इतना बड़ा लिखने से तो अच्छा है वोल्ट लिख दो, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट और ये कितना फर्क है, इसमें कितनी स्पेस जाएगी, कितना दिमाग जाएगा, राइट? Gravitational constant, I will come to gravitational constant. I will come. As we go ahead, I will cover all the things. Don't worry. Okay. Resistance का क्या होता है? What is the unit of resistance? Ohm. Very good. तो ये हो जाता है ओम, HM। ऐसे बना दे तो ओम, राइट? 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम। देखो ये बल्ब जैसा ओम बनाना कितना आसान है, लेकिन ये लिखना कितना टफ है। तो एसआई ने क्या किया? एसआई ने बहुत अच्छा चीज किया। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज सबका इनने खेल खत्म कर दिया। ये तो न्यूटन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्राई करो, फोर्स पता है आपको, चार्ज पता है, ट्राई करो फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स मुझे पता है क्या? एम एल टी माइनस 2। चार्ज क्या है मेरा?
ये रहा चार्ज क्या हो जाएगा 80, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ओके आपका देखता हूँ सबका क्या है, एम एल टी माइनस 3 आई माइनस 1 एम एल 3 माइनस 3। ओके बाकियों को बना ये, कितनों को बना, हाउ मेनी गॉट दिस, बस 3 बच्चों को, 4 को, 5, 6, सबके आंसर चाहिए, या तो बनेगा या डाउट होगा। एवरीवन शुड टाइप 1। सबको हो गया, चलो ठीक है गुड। सो आपका ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, फोर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना डिनोट करने से ज्यादा क्या है अच्छा, फोर्स अपॉन चार्ज है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम से डिनोट करते हैं। फोर्स न्यूटन हो गया और चार्ज कूलम हो गया। ये आपको 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें आता है। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड बता देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है सी से डिनोट करते हैं राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड डी से डिनोट करते हैं, तो ई बाय सी। मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम एम से या बी से, यूजुअली आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो बी से डिनोट किया, मैंने यहाँ पे ई से डिनोट किया है, आप बी से कर सकते हैं। ई का आपको ऑलरेडी पता है एम एल आई माइनस 1 टी माइनस 3 अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब क्या, एल टी माइनस 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से एल एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ से ये गलत हो गया राइट, ठीक है देखते क्या आएगा, टी एम एल टी आई माइनस 1 टी माइनस 3 एल टी माइनस 1, स्पीड है ना -2 थोड़ी होगा। अब देखो क्या आएगा ये एम आई माइनस 1 टी माइनस 1, या एल जीरो भी लिख सकते हो, एम एल जीरो टी माइनस 2 सॉरी टी माइनस 2 आई माइनस 1, कितनों को बन गया ये, और डिवाइड करना है, आ गया टी माइनस 2, यस टी इज -2, सॉरी आई डिड -2, टी इज -2, यहाँ पे गलत लिखा है एम एल जीरो टी -2 आई -1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ओके किसने ने टेस्ला नाम सुना है, आपने सुना होगा टेस्ला नाम, निकोलस टेस्ला, हु इज निकोलस टेस्ला, हु इज निकोलस टेस्ला, कौन था निकोलस टेस्ला, क्या किया था उसने, कितनों ने 10th क्लास में एसी जनरेटर पढ़ा है, था ना एसी जनरेटर, एसी जनरेटर किसने बनाया, एसी जनरेटर टेस्ला ने बनाया, टेस्ला ने एसी जनरेटर बनाया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा दो मैग्नेट रहते हैं नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक फील्ड आती है, कॉइल मूव करती है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स रहते हैं, करंट फ्लो होता है, ये वही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल से मैग्नेट में फील्ड आती है ऐसे, मैं उसी की फील्ड की बात कर रहा हूँ।
तो इसका नाम टेस्ला के नाम से दिया, क्योंकि टेस्ला ने जनरेटर निर्माण किया। आपके घर में लाइट है, आप इतने खुश हो, टीवी देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सब किसके वजह से हो रहा है? टेस्ला की वजह से। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक सम क्वांटिटीज मैंने डिस्कस करी। मैंने बहुत क्वांटिटीज डिस्कस कर दी, नियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 I discussed approximately 17 quantities with you, but in total they are in 11th and 12th they are more than 50 quantities, 50। जैसे आप पढ़ोगे 11th क्लास में आपको और मिलेगी, बट सिंस आपको ये बेसिक समझ में आ गया है, आप उन सबको समझ जाओगे। नो, डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूज होते हैं, 3 यूज। एक यूनिट को चेंज 1 यूनिट टू अनदर। दूसरा, आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और किसी अननोन क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हो? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी अननोन आप फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। आपके कितने सारे फॉर्मूलेज हैं? आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव हुए, मैक्सिमम। और ये अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कुछ क्वांटिटीज रहती है जिसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, आप वो भी निकाल सकते हो। दैट ऑल्सो वी विल डू। एंड चेंजिंग 1 यूनिट टू अनदर। जैसे देखो, आई एम कन्वर्टिंग व्हाट, सेंटीमीटर और मीटर इनटू सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज व्हाट मीटर, दिस इज एसआई पार्ट, मीटर, केजी, सेकेंड्स। आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू विच, सीजीएस सपोज। ये आपको आता है यूजुअली, एसआई टू सीजीएस कन्वर्जन आता है। तो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 100 सेंटीमीटर होता है। केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, कितना? 1000 ग्राम होता है। सेकेंड्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो कोई कन्वर्जन नहीं होता है। दिस इज व्हाट एसआई टू सीजीएस कन्वर्जन। जब मैं कोई क्वांटिटी कन्वर्ट करता हूं, सपोज आई कन्वर्ट वन क्वांटिटी इनटू अनदर, सपोज आई कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। if I want to convert from SI to, if I want to convert CGS 1 unit to another, I'll convert meter into centimeter. Then what I will do, I will see मीटर 1 है तो यहाँ पे सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हुए कितना फैक्टर आ जाएगा? 1000, सॉरी 100। सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड, सो 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। राइट, ऐसे करते हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं नीट में और मेंस में। ठीक है, नाउ सी, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। सी व्हाट इज 1, दीस आर 3 क्वेश्चंस। मैं एक करता हूं, दूसरा तीसरा आप करना। मैं आपको हिंट दे देता हूं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 1 डाइन। सी न्यूटन क्या है? मेरी एसआई यूनिट है। डाइन क्या है? मेरी सीजीएस यूनिट है। ऐसा ही सुनते ही मुझे पहले तो मुझे इसका फोर्स है राइट। फोर्स मतलब क्या? M L T-2। ये क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों के लिए, एसआई के लिए भी और सीजीएस के लिए भी। अब देखो एसआई के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। 1 मीटर is equal to 100 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मैं एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकम्स 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिखते हैं, वैसे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या लिखते हैं? डाइन्स लिखते हैं।
तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 टाइम, कैसे होगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम 1 नहीं होगा, 1 न्यूटन इंटू 10⁵ ओके, कितने बच्चों को ये समझ में आया? ठीक है, I'll tell you, I'll teach you this too also, then I'll tell you one story. अब फिजिक्स पढ़े तो न्यूटन से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा आपका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये स्टोरी के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है? जूल्स किसकी, जूल्स क्या है? मेरा वर्क है, ठीक है? ट्राई करो सॉल्व करने का। वर्क मतलब क्या क्या है इसकी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml2t-2, right? ml2t-2. Now how we'll solve this question? I want to convert 1 joule into, this is SI, I want to convert into ergs, which is what? Which is CGS. ओके ट्राई, अच्छा कुछ बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो स्टोरी सुनाऊंगा तो आप बहुत फास्ट काम करोगे, स्टोरी सुनते ही आपने आंसर दे दिया, मैंने सुनाई भी नहीं। तो ठीक है, 1 जूल, जिनको कुछ डाउट हो या क्रॉस चेक करना हो, देखो 1 जूल क्या हो जाएगा? मास क्या है? 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, राइट? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। हाउ वी विल डू दिस? अब देखो, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये L2 और T-2 है, 2 की पावर में। तो देखो kg 1000 हो जाएगा। अब देखो मीटर क्या है? 2 पावर में, राइट? तो क्या होगा? इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये फाइनली? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? जूल्स होता है। और ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? अर्ट्स। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ट्स। ओके, ये सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? वेरी गुड। एक बारी में आ जा रहा है, बहुत तेज हो। चलो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। Young modulus of steel is 19 into 10⁻10 Newton per meter square. Express it in डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो डायरेक्ट न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना आपको आता है, डायरेक्ट कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो और सीजीएस में डायरेक्ट लिखो। आया? चलो ठीक है। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जो ऑलरेडी पता है। देखो ये दो आप याद रख लो, बहुत जरूरी पड़ेगा। न्यूटन टू डाइन जूल स्टोर्स, एटलीस्ट ये दो तो याद होने चाहिए खुद भी हो। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ टाइम्स 1 जूल इक्वल टू 10⁷ होल्स। देखो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब देखो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा? 10⁵ टाइम्स
एंड 1 मीटर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर्स। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइम्स अपॉन 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा हटा दो, डाइन पर सेंटीमीटर। अब देखो 19 × 10⁻, 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 × 10⁻10 इंटू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 19 × 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट विल बिकम व्हाट, आंसर विल बी 19 × 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितने बच्चों को यहां तक सब समझ में आ गया? चलो, आपने इतने अच्छे से 1 घंटे पढ़ाई की है तो आपको एक, अब तक आपको चॉकलेट तो दे नहीं सकता, ऑनलाइन चॉकलेट डिलीवरी नहीं रहती, बट आई कैन टेल यू अ स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑफ न्यूटन, सॉरी आइंस्टीन। आइंस्टीन डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मेनी न्यू थ्योरीज। सो बहुत सारे फ्रेंड्स आइंस्टीन के, और जो काफी डॉक्टर्स थे, फिलोसफर्स थे, दे एवरी डे यूज्ड टू कॉल आइंस्टीन, बहुत बड़े सेमिनार के लिए। रोज ही यूज्ड टू गिव नियरली 5-6 सेमिनार्स। तो बहुत थक जाता था, एक ही एक चीज हर जगह बोलना, एक ही एक चीज बार बार बोलना, कभी एक कंट्री में, फिर अगले दिन दूसरी कंट्री में 5-6 जगह, फिर तीसरी कंट्री में 5-6 जगह, इसकी बहुत डिमांड थी। तो आइंस्टीन परेशान हो गया, थक गया। तो उसने अपने ड्राइवर को बोला, एक दिन वो जा रहे थे, तो ड्राइवर को बोला आइंस्टीन ने कि देखो, तुम मेरा पिछले 4-5 सालों से रोज सेमिनार सुन रहे हो, तुम्हें एक एक वर्ड याद है मेरा, मैं बहुत थक गया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एसी में मस्त बैठता हूँ, अच्छे से कूलर वाले रूम में, तुम सेमिनार दो, तुम्हें एक एक चीज पता है मेरी, तुम्हें तो ये भी पता है मैं कब कैसा हाथ हिलाता हूँ, कब क्या बोलता हूँ, कब क्या बोलना है, सब पता है तुम्हें वर्ड टू वर्ड, तो एक काम करो तुम बोल दो। तो ड्राइवर डर गया, बोलता अरे मैं कैसे बोल दूँ, मुझे बस बोलने को मैं बोल दूंगा पैरट की तरह, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आइंस्टीन बोलते तुम चिंता मत करो, लोगों को भी कुछ इतना समझ नहीं आता है, बस सुनने के लिए आते हैं और ताली मार के छोड़ देते हैं, यू डोंट वरी। तो ड्राइवर को बहुत फोर्स किया आइंस्टीन ने। अब ड्राइवर क्या है, आइंस्टीन का ड्राइवर है, उसने बोला ठीक है, अपने बोला तो मैं बोल देता हूँ। अब सेमिनार स्टार्ट हुआ, ड्राइवर ने बहुत अच्छा बोला, आइंस्टीन से भी अच्छा बोला, जिस तरह से हाथ उला के, जितना बोल्डनेस से बोला, जितना, तो सब ताली मारे, बिल्कुल खड़े होकर ताली मार रहे। आइंस्टीन भी बहुत खुश। फिर एक हाथ उठा है ताली के बाद, सर डाउट। अब ड्राइवर डर गया, बोलता ठीक है, इतना तो मैंने डट के बोल दिया, मुझे तो डाउट, अब मैं कैसे क्लियर करूँ। तो फिर बोलता ठीक है, ड्राइवर बोलता, जो आइंस्टीन का एक्टिंग कर रहा था, बोलता ठीक है पूछो क्या डाउट है। तो पर्सन ने डाउट पूछा, कुछ तो बहुत कॉम्प्लेक्स डाउट पूछा। तो ड्राइवर बहुत तेज हंसने लग गया, हा 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 हा, इतना इजी डाउट है। बोलता ये तो इतना इजी डाउट है कि ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। जो आइंस्टीन का ड्राइवर सेशन ले रहा था, तो क्या हुआ कि वो दोनों ने अपना बदल लिया था पोजीशन, आइंस्टीन ड्राइवर बन गया था और जो ड्राइवर था आइंस्टीन बन गया था। तो ड्राइवर बोलता है ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। फिर आइंस्टीन ड्राइवर होता है, वो आता है, फिर वो पूरे आंसर्स क्लियर कर देता है। तो लोग और टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं आइंस्टीन तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उसका ड्राइवर भी कितना तेज। मतलब कि आइंस्टीन के जैसे एक और आ गया, डबल आइंस्टीन, आइंस्टीन और उसका ड्राइवर। कितनों को स्टोरी समझ में आई? नाइस स्टोरी। चलो एक जोक भी सुनाता हूँ। एक बार एक इंग्लिश टीचर बोलता है अपने स्टूडेंट को बहुत गुस्से में, बोलता है सर, वो सर को कुछ तो गलत आंसर दे देते हैं। तो इंग्लिश टीचर बिकम वेरी एंग्री एंड टेल्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन
यू एंड डोंकी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड डोंकी? तो स्टूडेंट 2 मिनट के लिए सोचता है और बोलता है सर मे बी 5 मीटर्स। आया समझ में? ये तो थोड़ा टेक्निकल जोक है, पता नहीं कितना पाएगा समझ में। टीचर बोलता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यू एंड डोंकी? तो स्टूडेंट बोलता है सर 5 मीटर्स। मतलब क्या बोल रहा है? बोल रहा है टीचर आप डोंकी हो। चलो ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। देखो इसमें ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे किसी की कमेंट्स नहीं आते। So let's proceed to continuation. Okay, now you have to quickly do. You have 1 minute. See, नीट में 1 मिनट भी बहुत, एडवांस मेंस में तो तब भी टाइम लेता है, नीट में तो you have to be very fast. Derive the relation between SI and CGS unit of momentum. Momentum मतलब क्या? Mass into velocity, MLT -1. निकालो SI CGS। क्विक, SI CGS का रिलेशन निकालो। हो जाए तो बताना। 1 kg is equal to 1000 grams, 1 meter is equal to 100 centimeter, राइट? टाइम सेकेंड से, सेकेंड से जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁵ ग्राम सॉरी सी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट, जी आ गया। The value of G is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. Its numerical value in CGS will be, numerical value मतलब ये पार्ट, numerical value in CGS will be, try to solve, try to solve. क्या आ गया? ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। देखो 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन, ए ऑप्शन है। मीटर क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। केजी क्या होगा? 1000 ग्राम। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर क्या होगा? 10⁵ इंटू 100 इंटू 100, मीटर स्क्वायर है, केजी स्क्वायर है 1000 इंटू 1000, क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अपॉन ग्राम स्क्वायर, 1000 आएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 को, क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कितनों को बनाइए? आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीट। ओके संजय, क्या रिपीट करना है पूरा? देखो मैं पहले यूनिट कन्वर्ट कर रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन है,
1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, 1 केजी 1000 ग्राम है। मैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को सीजीएस के टर्म्स में लिख रहा हूँ। न्यूटन क्या हो जाएगा 10⁵ टाइम्स, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी क्या हो जाएगा स्क्वायर है 1000 इंटू 1000 ग्राम स्क्वायर, तो 10⁻³ आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इफ आई राइट 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, इफ ऐसा लिखता हूँ देन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻³ यहाँ से लेके 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻, आ गया। वेरी गुड, चलो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, रो इक्वल टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कन्वर्ट इनटू एमकेएस। एमकेएस मतलब क्या, एसआई, एक ही बात है। एसआई और एमकेएस में क्या फर्क है, देखो इसमें सिर्फ 3 ही यूनिट है, केजी मीटर सेकेंड, इसमें केजी मीटर सेकेंड तो है प्लस अदर यूनिट्स है, कैंडेला, केल्विन, मोल, एम्पियर, ये 4 भी है, बस यही फर्क है। ठीक है, अब कन्वर्ट करो 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को एमकेएस में कन्वर्ट, बताओ कौन सा ऑप्शन है, उल्टा है, हैव टू कन्वर्ट this into MKS. This is what CGS. B. ओके, सो चलो ठीक है, बच्चों के आंसर आए, ए आया, बी आया, लेट्स सी। सी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम मतलब क्या 1/1000 केजी, उल्टा हो गया ना। 1 सेंटीमीटर क्या 1/100 मीटर्स, उल्टा जा रहा हूं मैं। अब करते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 2 ग्राम क्या हो जाएगा अपॉन 1000, और ये क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 केजी पर मीटर क्यूब, 2 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, क्या आएगा, कितनों का पी आया देखता हूं मैं, कहीं का ए कहीं का बी, कितनों को समझ में आ गए, हाउ मेनी अंडरस्टूड। ओके, जयदीप को डाउट है, ओके जयदीप क्या डाउट है आपको, पूरा फिर से समझाऊं, कहाँ पे डाउट है, लास्ट पार्ट ये वाला। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर है, एक मिनट अगेन अगेन, आपको ये समझ में आया जयदीप, ये पार्ट
ओके देखो ग्राम है, 2 अपॉन ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो अपॉन आएगा। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, 1/100 इंटू 100 क्यूब है ना। देखो ये नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अच्छा 2 + 1/2, ये तो ऊपर आ जाता है ना, ये 1/100 सेंटीमीटर का ऊपर आ जाएगा। अब इसके 3 जीरो कटेंगे, इसके 3 जीरो, 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो गया। आया समझ में? जयदीप आ गया, वेरी गुड। ठीक है नेक्स्ट, ये वाला पार्ट करो, ऑब्जेक्टिव। 1 मिनट है, 1 मिनट। If density of mercury is this, its value and CGS will be. देखो अब डायरेक्ट करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को किस में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर में। डायरेक्ट यहीं पे करो, अब इतना करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यू हैव टू बी वेरी फास्ट। सारे काट दो जितने भी है। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर आया। ओके नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक आया क्या? किसी को कोई डाउट पूछो। W1 मीन्स अर्जुन, व्हाट इज W1? ओके गलती से रख गया। ओके नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट, डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैसे। एग्जांपल, इफ सपोज आई वांट टू फाइंड रिलेशन, सी फाइंड रिलेशन बिटवीन फोर्स मास वेलोसिटी टाइम, चार के बीच में क्या रिलेशन है, ये मुझे फाइंड करना है। देखो मैं ऐसे लिखूंगा, अब देखो फोर्स इक्वल टू मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी। देखो हमेशा याद रखना डायमेंशनल एनालिसिस में फंडा क्या रहता है, तो बेसिक फंडा ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज, जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, दोनों को डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। जैसे फोर्स है, फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2 इक्वल टू एम की पावर ए, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी -1 की पावर बी, हो जाएगा टाइम की पावर सी। एम एल टी का -2 इक्वल टू, अब क्या सारे एम एक साथ ले लो, एम हो जाएगा ए, एल हो जाएगा बी, टी हो जाएगा सी -d। अब मैं इक्वेट कर दूंगा, ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, सॉरी, बी इक्वल टू 1, सी -b इज इक्वल टू माइनस। तो कैसे करेंगे, देखो c -b इक्वल टू -2, बी यहां से ले लूंगा, तो देखो ऐसा हो जाएगा, c -1 इक्वल टू -2, c इक्वल टू
-2 + 1 = -। अब फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इक्वल टू m की पावर 1 मास वेलोसिटी की पावर 1 टाइम की पावर -1, फोर्स बिकम्स mv/। ये मेरा फॉर्मूला है। इतनों को समझ में आया ये मैंने क्या किया? इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, विल गिव टाइम, डोंट वरी। किसी को कोई डाउट? ओके, आई विल रिपीट। आई विल टेक सम 1 to more एग्जांपल्स, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो एक और रिलेशन निकालते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी, मास, वेलोसिटी। एनर्जी, मास, वेलोसिटी। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, mL2T -2। मैं लिखूंगा एनर्जी इक्वल टू मास की पावर a वेलोसिटी की पावर b। एनर्जी हो जाएगा mL2T -2। ठीक है, m की पावर है मतलब क्या, m की पावर a, b क्या हो जाएगा LT -1 की पावर b। पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जो रिलेशन लेना है। एक को लेफ्ट साइड ले लूंगा, बाकी दो को राइट साइड ले लूंगा। जो मैं राइट साइड लेता हूं उनको एक रैंडम पावर A B C D E F G H लिखता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इनको डायमेंशनल फॉर्म में लिखूंगा। mL2T -2 ये एनर्जी का है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी का LT -1। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा। m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2 इज इक्वल टू m की पावर a L की पावर b T की पावर -b। अब आप ध्यान से देखो क्या होगा, ये a और 1 इक्वल हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो b क्या आ रहा है मेरा, b मेरा आ रहा है 2। एनर्जी क्या हो जाएगा, m की पावर 1 v की पावर 2। एनर्जी इक्वल टू mv² विथ सम कांस्टेंट k। एक कांस्टेंट लगाना जरूरी है। जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करते हो, एक कांस्टेंट के लगना हमेशा जरूरी है। उस के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे देखो ये किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, mv²। और कोई एक कांस्टेंट के ले लो, वो के की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे आप ओम्स लॉ करते हो, v = IR, राइट, KIR, where k is equal to 1 for Ohm's law. For this, k is equal to half. Okay, Nupur, could you understand? प्रज्वल, आया समझ में? लाइक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में प्लस सी रहता है, इसमें बस आप एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1 2 3 4 5 6 7, even can be 100 1000। समटाइम दिस कांस्टेंट हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट भी होता है, कई बार इनका यूनिट भी रहता है। समटाइम दिस कांस्टेंट्स हैव इवन यूनिट। जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो आपने पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या रहता है, यूनिट रहता है। समटाइम्स सम कांस्टेंट हैव इवन यूनिट। ठीक है, चलो लेट्स गो टू सम क्वेश्चन। फोर्स में देखो, फोर्स इक्वल टू KMA। के क्या हो गया, इसमें 1 हो गया। ठीक है सूरज, टेस्ट डायमेंशनली इफ इक्वेशन में बी करेक्ट। आपको एक इक्वेशन दी है v² = u² + 2ax।
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? लेफ्ट साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट साइड डायमेंशन। अब चेक करो दोनों डायमेंशन सेम आ रहे हैं कि नहीं। v स्क्वायर वेलोसिटी है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। v स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड का डायमेंशन है। राइट साइड क्या है? एल टी माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2, और x क्या होता है? डिस्टेंस होता है। याद आ रहा है किसी को? कितनों को इक्वेशन याद आ रही है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये क्या हो जाएगा? ये भी एल का डिस्टेंस होता है। देखो एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या है? एल स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखो ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 है। मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इक्वेशन इज करेक्ट। देखो इक्वेशन कब करेक्ट होती है? आपको कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दी, हाउ यू कैन चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट? जस्ट यू नीड टू चेक लेफ्ट हैंड का डायमेंशन राइट हैंड के डायमेंशन से सेम होना चाहिए। देखो यूज ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 आ रहा है, ये एल स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो प्लस में है तो क्या रहेगा? सेम होना चाहिए। कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं? हम इक्वेशंस बनाना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू मेक इक्वेशंस, हाउ टू सी वेदर इक्वेशन इज करेक्ट। और कुछ वैल्यूज दिए हैं, कुछ क्वांटिटीज दिए, उनको कंबाइन करके कुछ इक्वेशन बनाना। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन है, ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। टेंशन मत लेना, बोलना सर एच सी वर्मा का करवा दिया। बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एच सी वर्मा। देखो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। ट्राई, ये फोर्स है, मास, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस, आई टेल यू। मास, वेलोसिटी, आर इज डिस्टेंस और रेडियस। तो आपको लिखना है फोर्स इक्वल टू मास ए, वेलोसिटी v, रेडियस c। रेडियस क्या होगा मेरा? मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड, kg। ट्राई करो, आई गिव यू 2 minutes, बट आई वॉन्ट यू टू पेशेंटली डू इट। हो जाए तो यू कैन टेल मी द आंसर, और यू कैन टाइप डन। हो जाए तो यू कैन टाइप डन। ओके ओके। आया? तो देखते हैं क्या होगा। एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एम की पावर ए, वी की पावर वी, सॉरी, एल टी माइनस 1 की पावर वी, एल की पावर सी। सो एम एल टी माइनस 2 इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर, वी प्लस सी, टी की पावर माइनस बी।
ए इक्वल टू 1, टी इक्वल टू से बी इक्वल टू 2 कंपेयर कर लोगे, एंड सी क्या आएगा आपका, बी प्लस सी क्या है आपका 1 है, अब बी 2 हो गया है तो सी क्या हो जाएगा -2। तो आपका आया ए 1, बी 2, सी -1। क्या आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन फोर्स इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल। ये आप पढ़ोगे आपको सिलेबस में। कितनों को ये समझ में आया, कितनों को आया समझ में, मेरे को बोलो भाई। लैग, कितना लैग आ रहा है, स्टूडेंट्स हाउ मच लैग इज देयर बिटवीन माय ऑडियो एंड वीडियो, थोड़ा आई एम राइटिंग लाइक सी अन ए एन यू पी ए एम, ए एन यू पी ए एम। B2 कैसे हुआ, देखो आर सी है, आर मतलब क्या एल, तो एल सी हुआ, और टी क्या है, ये क्या हो गया एल टी -1 की पावर भी वेलोसिटी। अब कंपेयर करो m1 l1 t-2 इक्वल टू एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस बी, टी माइनस बी। तो बी क्या होगा, बी होगा आपका 2, बी विल बी व्हाट 2, ए क्या होगा 1, तो बी प्लस सी क्या होगा आपका 1, एल ना, एल की पावर, पावर कंपेयर करो, आ रहा है जयदीप समझ में, बी प्लस सी एल कंपेयर करो क्योंकि दोनों एल की पावर है, बी प्लस सी 1 होगा, बी 2 आया, -2 माइनस बी है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। If velocity, time and force were chosen as basic quantities, find the dimensions of mass. Mass equal to VA TB F C. ट्राई करो, M equal to L T -1 A TB M L T -1 -2 C। ट्राई करो, मास को किसके टर्म्स में निकालना है, मास के डायमेंशन चाहिए, मतलब क्या मास को किसके टर्म्स में लिखना है, मास यू हैव टू टर्म्स राइट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स। हो गया, m1 l0 t0 इज इक्वल टू l कहाँ कहाँ पे है, ये रहा और ये रहा, a प्लस सी, m किधर है, m यहाँ पे एम सी, t क्या है -a प्लस b -2c। लेट्स सी, c इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ से a प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, a क्या हो जाएगा -1,
अब ये देखते हैं, माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, डायमेंशन सेट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए मेरा -1 है, माइनस माइनस +1 हो गया, प्लस बी -2 इक्वल टू 0, बी -1 इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, बी बना गया, सी बना गया, ए -1 आ गया। तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, बी की पावर -1, टी की पावर 1 एंड एफ की पावर 1, एफ टी वी -1। अथर आपका पहले से ही आया था, कितने को समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया समझ में, इजी है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If v is a speed, r is the radius, and g is acceleration due to gravity, which of the following is dimensionless? Which of the following is dimensionless? देखो इसको दो अप्रोच से करेंगे, विल डू विद टू अप्रोच। एक होगा जो अभी हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड मेथड, दूसरा रहेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलो ऑब्जेक्टिव से करते हैं, ठीक है। v है, r है, g है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो v का यूनिट क्या होता है, lt -2, r क्या हो गया, l, और g क्या हो गया, g हो गया, सॉरी lt -1, ये l हो गया, g क्या हो गया, lt -2। ये क्या मेरे को दिया, अब मैं ऑप्शन में पुट करता हूं, आई पुट दीज वैल्यूज इन ऑप्शन। देखो डायमेंशनलेस मतलब क्या, जब मैं ये तीनों डालूंगा डायमेंशन, मेरे को m0 l0 और t0 आना चाहिए। तो मैं पुट करता हूँ, ए में पुट करता हूँ, बी में, सी में, डी में, v² g/r, v² g/r क्या होगा, l² t-2, जी क्या हो जाएगा, lt-2 अपॉन r, l हो जाएगा। ये तो कभी नहीं होगा जिंदगी में, ये दोनों भी जिंदगी में नहीं होंगे, देख के पता चल रहा है। डी कैसे होगा, देखो v²/rg, l² t-2 अपॉन r क्या है, l, g क्या है, lt-2, l² t-2 अपॉन l² t-2, क्या आ गया, l0 t, l0 t0, m0 भी रहेगा ही। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से दिया गया। कितना तो समझ में आया मैंने क्या किया, हाउ मेनी अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट? दो का ही टिका है, बाकी बच्चे टोटल 18 स्टूडेंट्स आर देयर, आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन से किया, स्टैंडर्ड में आपको पता है क्या करोगे, m0 l0 t0 इज इक्वल टू va rb gc, m0 l0 t0, ये तीनों जीरो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, मतलब ना मास हो, ना लेंथ हो, ना टाइम हो। ये क्या हो जाएगा, lt-1 की पावर 0 पर ए, आर क्या हो जाएगा, एल की पावर बी, जी क्या हो जाएगा, lt-2 की पावर सी। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आपका भी आंसर किया जाएगा। ये आपको मैंने आपके लिए छोड़ दिया, यू कैन ट्राई ऐसे। ओके,
energy, velocity, time are chosen as fundamental quantities, then dimension of surface tension will be. Surface tension is force by length. दो ऑप्शन है, आप सॉल्व करो या डायरेक्ट पुट करो. आइदर सॉल्व और डायरेक्ट पुट, यू हैव टू ऑप्शन. कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं. चेक करो वैसे आंसर आ रहा है कि नहीं, बाकी सब ट्राई करो क्या डी सही है गलत है. सॉल्व भी कर सकते हो आप, पुट भी करके देख सकते हो. अच्छा डी पे स्टार है, ठीक है देखो चलो सी सही है कि नहीं. डी स्टार है जब भी, यू कैन सी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ट्राई तो करो आंसर, सब्स्टिट्यूट करके देखो, वैल्यूज पुट करके. एनर्जी क्या होता है, एम एल टू ई माइनस टू. वेलोसिटी क्या होता है, एल ई माइनस वन. टाइम क्या होता है, E. पहले मैं डालता हूं एम. अब देखो सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ मतलब क्या, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन फिर टी माइनस टू. एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू. ठीक है, एम टी माइनस टू. अब इनको मैं जब पुट करूंगा फाइनली आंसर क्या आना चाहिए मेरा, एम टी माइनस टू आना चाहिए. तो आप बोल रहे हो डी में देखो, ठीक है डी में देखते हैं. एम एल टू टी माइनस टू 20 अपॉन अपॉन, इसको देखो ऐसे लिखो, वी अपॉन वी स्क्वायर टी स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू. और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर. कहाँ आ रहा है, अब देखो एल एल कट रहा है, ठीक है एम आ जाएगा, माइनस टू कट रहा है, तो मेरा आंसर डी. ये कितने बच्चों को समझ में आया ये क्वेश्चन, क्या कर रहा हूं मैं. अच्छा बाकी पूछो मुझसे क्या हो रहा है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूँ. बाकी नेहा आ रहा है, नुपुर प्रज्वल देशमुख भक्ति, बोलो भाई. साहिल रुचिता सूरज प्रिया प्रज्वल. ठीक है चले आगे, चलो ठीक है, वेरी गुड. ठीक है इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपको स्टार्ट कर दे रहा हूँ. देखो फोर्स, ठीक है एम टी माइनस टू आया था, एम टी माइनस टू इक्वल टू ई की पावर ए वी की पावर बी टी की पावर सी. लगा दो एम एल टू ई माइनस टू की पावर ए एल टी माइनस वन की पावर बी टी की पावर सी एम टी माइनस टू. कंपेयर करो एबीसी की तीन इक्वेशन बनेगी, ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी. आपकी ए की वैल्यू वन आएगी, बी की वैल्यू माइनस टू आएगी, सी की वैल्यू माइनस टू आएगी. आप पुट करोगे आपका ये फॉर्मूला है. ओके
ये वाला क्वेश्चन करो, आई थिंक दिस इज द, दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये दो क्वेश्चन करो फिर आपको मैं छोड़ दूंगा, आप थक गए हो गए। ट्राई दीज टू क्वेश्चंस। Velocity of water waves may depend on wavelength, density and gravity. आपको ये रिलेशन देखना है, ए बी सी डी क्या है। दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या है आपको करने का, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ट्राई करो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ट्राई करो। डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, के जी पर मीटर क्यूब, एम एल -3। पढ़ा था डेंसिटी, ये डायमेंशन याद होने जरूरी है। क्या करो, देखो लेफ्ट साइड में आपका वी स्क्वायर है, मतलब क्या, एल स्क्वायर टी -2 होना चाहिए, राइट राइट, एन टी -2 -1 का होल स्क्वायर ना। अब देखो लेमडा क्या है, वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या रहेगा, मीटर्स लेंथ है। डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो से डिनोट करते हैं, एम एल, सॉरी वेवलेंथ एल हो जाएगा, ये एल टी माइनस -3 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी -2। अब देख लो, पहला लेमडा इनवर्स, जी इनवर्स, रो इनवर्स सब नीचे, 1 अपॉन लेमडा ग्रेविटी डेंसिटी, मतलब क्या, 1 अपॉन एल एम एल -3 एल टी -2, तीनों नीचे आ गया, 1 अपॉन एम एल -1 टी -2। ये तो गलत लग रहा है। अच्छा आप बोल रहे हो ये सही है, तो ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन आप सबका सही आ रहा है तो देखते हैं। जी एन लेमडा, जी क्या है मेरा, ये है एल टी -2 इंटू लेमडा इंटू एल, एल स्क्वायर टी -2। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के डायमेंशन हो गए। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन बी स्क्वायर थे, क्या आ रहा है, एल स्क्वायर टी माइनस। लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस के डायमेंशन सेम हो गए, तो मेरा बी ऑप्शन। सूरज को आया, तब को आया, साहिल को आया, बना स्टूडेंट्स, जयदीप को आया, ठीक है, बाकी अभय को आया। देखो आपको समझ में आएगा जब भी, जब मैं आपको तो शीट भेजूंगा आप कर पाओ। आज जो आपको क्वेश्चंस की शीट देने वाला, यू कैन डू ओनली व्हेन इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू नो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दूंगा, ऑब्जेक्टिव फॉर योर कॉम्पिटिटिव मेंस एंड नीट, एंड सब्जेक्टिव फॉर योर बोर्ड्स वगैरह भी निकालना है। हुआ, चलो वेरी गुड। अगर आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है सब्जेक्टिव में से, तो वही फिर बेसिक अपना देसी तरीका जो पढ़ते आ रहे हैं, E इक्वल टू लेमडा ए जी बी रो सी।
एल टी माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा एल ए, ग्रेविटी हो जाएगा एल टी माइनस टू की पावर, रो हो जाएगा एल टी सॉरी एम एल माइनस थ्री की पावर सी। अब सॉल्व करोगे, ए आपका आएगा वन, ए आएगा 1/2, बी आएगा 1/2, सी आएगा 0, और के क्या है? कांस्टेंट। मैंने बोला था कांस्टेंट लगता है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकती है, 1 करोड़, डिपेंड करता है, या 1/10⁻⁻20 भी रहती है कई बार। चलो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। Today's last question. Pressure. प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, नेट इंटू ब्रेथ, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, टी बोल रहा है कोई, तो देखो क्या आता है। सी वेलोसिटी है, प्रेशर का डायमेंशन हो गया, सॉरी सी का क्या होगा? एल टी माइनस वन, हो जाएगा एल टी माइनस टू। सब्सटीट्यूट करो सी बाई जी, आपको लेंथ का डायमेंशन निकालना है, राइट? लेंथ एल आना चाहिए, सी बाई जी क्या होगा? सी होगा एल टी माइनस वन अपॉन जी, क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, फाइनली टी आएगा, गलत, सी इंटू जी इंटू पी, सब डी बोल रहे हैं। प्रेशर का देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू सी एल टी माइनस वन इंटू जी एल टी माइनस टू। ये भी मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि इसमें एम रहेगा, सी बाई पी। प्रज्वल बहुत खुश है, डी आ रहा है, तो देखते हैं, चलो डी पे आते हैं फिर। लेट्स गो टू डी। सी सी स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन जी, जी क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, ये कट जाएगा, एल स्क्वायर बाई एल कट जाएगा, आंसर एल आ जाएगा। तो आपका लेंथ निकालना था, डायमेंशन ऑफ लेंथ एल है, ये भी एल हो गया, डी सही हो गया। तो इसके साथ आपका 50, आई कैन से 60% समझ लो, 60% खत्म हो गया सिलेबस आपका। बस एक लास्ट टॉपिक है जो कल करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करना करने की एक दो दिन में। फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी एक बचा है आपका, प्रिसीजन एरर, ये एक टॉपिक बचे हैं, ये 1 2 3, इसके साथ आपका डायमेंशनल एनालिसिस खत्म हो गया। ओके, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई कमेंट्स? ठीक है, सब स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस देते हुए जाना, टाइप योर नेम एंड गो, पुट अटेंडेंस एंड गो, ऑल स्टूडेंट्स।
कितने बच्चे? किस तक आए थे? ये पुरानी नहीं करने वाले।